آپ سے ناراضگی مول کر میں اس کی زندگی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں. میں تو آ جاؤں ساری زندگی خود کو آپ کا مجرم ٹھہرا دوں گی. میں بس یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے سہام کی زندگی سے جا رہی ہوں. اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. نے اسے کتنی بار کہا ہے کہ کسی کی بات کا یقین مت کر دیا عماد. مطلب نہ کال اٹینڈ کرنا، صرف مجھے دیکھنا، لیکن اس سے مجھے ہی زیرو نہ مجھ سے مل رہی ہے. یہ اب گھر کی باتیں باہر لوگوں تک جائیں گی اور وہ لوگ آ کے مجھ سے سوال جواب کریں گے. عرشیہ مجھے سبق سکھا کے گئی. کچھ بھی کہا ہوگا نا، آپ کی بہتری کے لیے کہا ہوگا. میری بہن میرے سامنے کیوں لیتے ہو؟ تم جانتے ہو مجھے نہیں پسند وہ لڑکی. آپ تو اسی میری لائف میں شامل کرنا چاہتی ہیں. سہام تمہیں کیا اچھی لڑکی ہے. دیکھو یہ سکھ کا سانس لوں گی. تمہیں اس بات کا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جسٹ فار یور نالج خود کو مجھ سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میں نے بھی اس سے وعدہ کیا. میں بھی اپنی ساس و مشیر سے یہ بات کر نو نہیں بولے گا مجھے. سوچو تم میں سننے کو ملیں گی. دیکھو سہام، ابھی تو مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میری خاطر ڈرامے بازی ہے. یہ میرے اکلوتے بھائی کو مجھ سے دور کر دیا. سچ کہتے ہیں لوگ. میری بات کو تو سمجھیں. تمہیں میری بات ماننی ہوگی. کسی سے نہیں ڈرتا آپ ہی. جس کو آنا ہے وہ آ جائے. ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور. ہاں اس سے بھی بڑا فنکشن رکھ لینا. میری تو ویسے ہی ساری زندگی ترس ترس کے گزری ہے. گڈ. اور وہ ہوا ہے ان لڑکیوں اور سارے خزانے تمہارے باپ نے ادھر ہی لوٹائے ہیں. ایسی باتیں کر رہی ہو؟ رات اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹیوں کا اسے کم ہے کہ 2 شادیوں کی صورت میں دونوں نہیں کر پایا. صاف عماد کی اور انوشی کی انگیجمنٹ سیریمنی فکس کر دیتا ہے، اور تبھی ان کے انگیجمنٹ میں جب سارے آتے ہیں تو نانی کا موڈ بنا ہوتا ہے تو اور کاشفا کا بھی. اور لیکن نانی مجبوراً کہتی ہے کہ اب مجھے اچھے سے تیار شیار ہو کے جانا پڑے گا تاکہ سارے مجھے اچھے سے ویلکم کریں. مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو کرن ہوتی ہے وہ چال چلتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خوشی کے موقع میں بھی کچھ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں. اور جب وہ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آج کے دن اس خوشی کے موقع پہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ سیرمنی بھی جلد از جلد کر دوں گی. اور وہ مناہل کے ساتھ، تب مناہل تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن عرشیہ کا موڈ بن جاتا ہے کیونکہ عرشیہ تو امید لگا کے بیٹھی تھی ڈاکٹر سیام سے کہ ڈاکٹر سیام سے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے. تب عرشیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ڈاکٹر سیام پہ کہ وہ بالکل بھی ایک لفظ نہیں بولتا، اور تب وہ سیرمنی چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. مزید آپ دیکھیں گے کہ جو عماد ہوتا ہے وہ عرشیہ کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر سیام بھی پہنچ جاتا ہے. تو تب وہ ڈاکٹر سیام کو کہتا ہے کہ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہم اسے سنبھال لیں گے، اور اگر تم اسے شادی نہیں کر سکتے تھے تو تمہیں اسے امید بھی نہیں دلانی چاہیے. تب ڈاکٹر سیام کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں سارے معاملات سیٹ کر لوں گا. لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال میری سسٹر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اور تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا. مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب یہ ساری بات نانی کو پتہ چلتی ہے تو نانی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ عرشیہ کی شادی ڈاکٹر سیام کے ساتھ نہ ہو. ڈاکٹر سیام کو کرن پہ تبھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو برباد کر ہی ڈالی، اب تم میری زندگی کے پیچھے پڑی ہو، لیکن میں تمہاری مرضی سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا.
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूँगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूँगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी और वो मिनाहिल के साथ। तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी और वो मिनाहिल के साथ। तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کرن کو کال آتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اور اس کی ساس کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ٹکٹ بھیجو تاکہ ہم جلدی جلدی پاکستان آئیں اور ہم یہ سیرمنی انجوائے کریں اور ہم تمہارے بھائی کو صحیح لوٹ مار کریں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں سارا کچھ خود ہینڈل کر لوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ صاف عماد کی اور انوشی کی انگیجمنٹ سیرمنی فکس کر دیتا ہے اور تبھی ان کے انگیجمنٹ میں جب سارے آتے ہیں تو نانی کا موڈ بنا ہوتا ہے تو اور کاشفا کا بھی، اور لیکن نانی مجبوراً کہتی ہے کہ اب مجھے اچھے سے تیار شیار ہو کے جانا پڑے گا تاکہ سارے مجھے اچھے سے ویلکم کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو کرن ہوتی ہے وہ چال چلتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خوشی کے موقع میں بھی کچھ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، اور جب وہ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آج کے دن اس خوشی کے موقع پہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ سیرمنی بھی جلد از جلد کر دوں گی، اور وہ مناہل کے ساتھ۔ تب مناہل تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن عرشیہ کا موڈ بن جاتا ہے کیونکہ عرشیہ تو امید لگا کے بیٹھی تھی ڈاکٹر سیام سے کہ ڈاکٹر سیام سے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تب عرشیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ڈاکٹر سیام پہ کہ وہ بالکل بھی ایک لفظ نہیں بولتا، اور تب وہ سیرمنی چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو عماد ہوتا ہے وہ عرشیہ کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر سیام بھی پہنچ جاتا ہے، تو تب وہ ڈاکٹر سیام کو کہتا ہے کہ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہم اسے سنبھال لیں گے، اور اگر تم اسے شادی نہیں کر سکتے تھے تو تمہیں اسے امید بھی نہیں دلانی چاہیے۔ تب ڈاکٹر سیام کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں سارے معاملات سیٹ کر لوں گا، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال میری سسٹر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اور تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب یہ ساری بات نانی کو پتہ چلتی ہے تو نانی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ عرشیہ کی شادی ڈاکٹر سیام کے ساتھ نہ ہو۔ ڈاکٹر سیام کو کرن پہ تبھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو برباد کر ہی ڈالی، اب تم میری زندگی کے پیچھے پڑی ہو، لیکن میں تمہاری مرضی سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کرن کو کال آتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اور اس کی ساس کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ٹکٹ بھیجو تاکہ ہم جلدی جلدی پاکستان آئیں اور ہم یہ سیرمنی انجوائے کریں اور ہم تمہارے بھائی کو صحیح لوٹ مار کریں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں سارا کچھ خود ہینڈل کر لوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ صاف عماد کی اور انوشی کی انگیجمنٹ سیرمنی فکس کر دیتا ہے اور تبھی ان کے انگیجمنٹ میں جب سارے آتے ہیں تو نانی کا موڈ بنا ہوتا ہے تو اور کاشفا کا بھی، اور لیکن نانی مجبوراً کہتی ہے کہ اب مجھے اچھے سے تیار شیار ہو کے جانا پڑے گا تاکہ سارے مجھے اچھے سے ویلکم کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو کرن ہوتی ہے وہ چال چلتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خوشی کے موقع میں بھی کچھ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، اور جب وہ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آج کے دن اس خوشی کے موقع پہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ سیرمنی بھی جلد از جلد کر دوں گی، اور وہ مناہل کے ساتھ۔ تب مناہل تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن عرشیہ کا موڈ بن جاتا ہے کیونکہ عرشیہ تو امید لگا کے بیٹھی تھی ڈاکٹر سیام سے کہ ڈاکٹر سیام سے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تب عرشیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ڈاکٹر سیام پہ کہ وہ بالکل بھی ایک لفظ نہیں بولتا، اور تب وہ سیرمنی چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو عماد ہوتا ہے وہ عرشیہ کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر سیام بھی پہنچ جاتا ہے، تو تب وہ ڈاکٹر سیام کو کہتا ہے کہ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہم اسے سنبھال لیں گے، اور اگر تم اسے شادی نہیں کر سکتے تھے تو تمہیں اسے امید بھی نہیں دلانی چاہیے۔ تب ڈاکٹر سیام کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں سارے معاملات سیٹ کر لوں گا، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال میری سسٹر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اور تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب یہ ساری بات نانی کو پتہ چلتی ہے تو نانی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ عرشیہ کی شادی ڈاکٹر سیام کے ساتھ نہ ہو۔ ڈاکٹر سیام کو کرن پہ تبھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو برباد کر ہی ڈالی، اب تم میری زندگی کے پیچھے پڑی ہو، لیکن میں تمہاری مرضی سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کرن کو کال آتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اور اس کی ساس کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ٹکٹ بھیجو تاکہ ہم جلدی جلدی پاکستان آئیں اور ہم یہ سیرمنی انجوائے کریں اور ہم تمہارے بھائی کو صحیح لوٹ مار کریں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں سارا کچھ خود ہینڈل کر لوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ صاف عماد کی اور انوشی کی انگیجمنٹ سیرمنی فکس کر دیتا ہے اور تبھی ان کے انگیجمنٹ میں جب سارے آتے ہیں تو نانی کا موڈ بنا ہوتا ہے تو اور کاشفا کا بھی، اور لیکن نانی مجبوراً کہتی ہے کہ اب مجھے اچھے سے تیار شیار ہو کے جانا پڑے گا تاکہ سارے مجھے اچھے سے ویلکم کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو کرن ہوتی ہے وہ چال چلتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خوشی کے موقع میں بھی کچھ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، اور جب وہ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آج کے دن اس خوشی کے موقع پہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ سیرمنی بھی جلد از جلد کر دوں گی، اور وہ مناہل کے ساتھ۔ تب مناہل تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن عرشیہ کا موڈ بن جاتا ہے کیونکہ عرشیہ تو امید لگا کے بیٹھی تھی ڈاکٹر سیام سے کہ ڈاکٹر سیام سے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تب عرشیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ڈاکٹر سیام پہ کہ وہ بالکل بھی ایک لفظ نہیں بولتا، اور تب وہ سیرمنی چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو عماد ہوتا ہے وہ عرشیہ کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر سیام بھی پہنچ جاتا ہے، تو تب وہ ڈاکٹر سیام کو کہتا ہے کہ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہم اسے سنبھال لیں گے، اور اگر تم اسے شادی نہیں کر سکتے تھے تو تمہیں اسے امید بھی نہیں دلانی چاہیے۔ تب ڈاکٹر سیام کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں سارے معاملات سیٹ کر لوں گا، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال میری سسٹر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اور تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب یہ ساری بات نانی کو پتہ چلتی ہے تو نانی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ عرشیہ کی شادی ڈاکٹر سیام کے ساتھ نہ ہو۔ ڈاکٹر سیام کو کرن پہ تبھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو برباد کر ہی ڈالی، اب تم میری زندگی کے پیچھے پڑی ہو، لیکن میں تمہاری مرضی سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کرن کو کال آتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اور اس کی ساس کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ٹکٹ بھیجو تاکہ ہم جلدی جلدی پاکستان آئیں اور ہم یہ سیرمنی انجوائے کریں اور ہم تمہارے بھائی کو صحیح لوٹ مار کریں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں سارا کچھ خود ہینڈل کر لوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ صاف عماد کی اور انوشی کی انگیجمنٹ سیرمنی فکس کر دیتا ہے اور تبھی ان کے انگیجمنٹ میں جب سارے آتے ہیں تو نانی کا موڈ بنا ہوتا ہے تو اور کاشفا کا بھی، اور لیکن نانی مجبوراً کہتی ہے کہ اب مجھے اچھے سے تیار شیار ہو کے جانا پڑے گا تاکہ سارے مجھے اچھے سے ویلکم کریں۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو کرن ہوتی ہے وہ چال چلتی ہے اور کہتی ہے کہ اس خوشی کے موقع میں بھی کچھ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، اور جب وہ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آج کے دن اس خوشی کے موقع پہ اپنے بھائی کی انگیجمنٹ سیرمنی بھی جلد از جلد کر دوں گی، اور وہ مناہل کے ساتھ۔ تب مناہل تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن عرشیہ کا موڈ بن جاتا ہے کیونکہ عرشیہ تو امید لگا کے بیٹھی تھی ڈاکٹر سیام سے کہ ڈاکٹر سیام سے ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تب عرشیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ڈاکٹر سیام پہ کہ وہ بالکل بھی ایک لفظ نہیں بولتا، اور تب وہ سیرمنی چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو عماد ہوتا ہے وہ عرشیہ کے پیچھے جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر سیام بھی پہنچ جاتا ہے، تو تب وہ ڈاکٹر سیام کو کہتا ہے کہ تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہم اسے سنبھال لیں گے، اور اگر تم اسے شادی نہیں کر سکتے تھے تو تمہیں اسے امید بھی نہیں دلانی چاہیے۔ تب ڈاکٹر سیام کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، میں سارے معاملات سیٹ کر لوں گا، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال میری سسٹر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اور تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جب یہ ساری بات نانی کو پتہ چلتی ہے تو نانی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ عرشیہ کی شادی ڈاکٹر سیام کے ساتھ نہ ہو۔ ڈاکٹر سیام کو کرن پہ تبھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی تو برباد کر ہی ڈالی، اب تم میری زندگی کے پیچھے پڑی ہو، لیکن میں تمہاری مرضی سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گا۔
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे कि वो बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और तब वो सेरेमनी छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो इमाद होता है वो अर्शिया के पीछे जाता है और वहाँ पे डॉक्टर श्याम भी पहुँच जाता है। तो तब वो डॉक्टर श्याम को कहता है कि तुम्हें मेरी बहन की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो हम उसे संभाल लेंगे। और अगर तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसे उम्मीद भी नहीं दिलानी चाहिए। तब डॉक्टर श्याम कहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं सारे मामला सेट कर लूँगा। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, फ़िलहाल मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जब ये सारी बात नानी को पता चलती है तो नानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अर्शिया की शादी डॉक्टर श्याम के साथ ना हो। डॉक्टर श्याम को किरण पे तभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, अब तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किरण को कॉल आती है और उसका हस्बैंड और उसकी सास कहते हैं कि हमें जल्दी से टिकट भेजो ताकि हम जल्दी जल्दी पाकिस्तान आएँ और हम ये सेरेमनी एंजॉय करें और हम तुम्हारे भाई को सही लूट मार करें। तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही कि हम तुमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। साफ इमाद की और अनुशी की एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स कर देता है और तभी उनके एंगेजमेंट में जब सारे आते हैं तो नानी का मूड बना होता है तो और काशवा का भी। और लेकिन नानी मजबूरन कहती है कि अब मुझे अच्छे से तैयार श्यार होके जाना पड़ेगा ताकि सारे मुझे अच्छे से वेलकम करें। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि वहाँ पे जो किरण होती है वो चाल चलती है और कहती है कि इस खुशी के मौके में मैं भी कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। और जब वो अनाउंस करती है तो वो कहती है कि मैं आज के दिन इस खुशी के मौके पे अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी भी जल्द अज जल्द कर दूंगी। और वो मिनाहिल के साथ, तब मिनाहिल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन अर्शिया का मूड बन जाता है क्योंकि अर्शिया तो उम्मीद लगा के बैठी थी डॉक्टर श्याम से कि डॉक्टर श्याम से ही उसकी शादी होने वाली है। तब अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर श्याम पे